خطرات بڑھنے لگے، ملک میں آج کورونا وائرس کے 125 کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 183 ہو گئی۔ سکھر میں 119، کراچی میں 30، سندھ بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 150 ہو گئی۔ خیبر پختونخوا سے بھی پہلی مرتبہ کورونا کیسز کی تصدیق۔ ڈی آئی خان قرنطینہ سینٹر میں 15 افراد کے ٹیسٹ مثبت آئے۔ کورونا سے متاثرہ زیادہ تر زائرین کی ہے۔ تفتان سرحد پر قرنطینہ کے نام پر مذاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھڑک اٹھے، کہا تفتان میں تمام مسافروں کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ ہم اپنے وسائل میں رہ کر ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہے ہیں، عوام رضاکارانہ طور پر محدود رہیں۔ صحت خیبر پختونخوا نے بھی تفتان بارڈر پر عدم سہولیات کا معاملہ اٹھا دیا۔ آج نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا زائرین کی تفتان بارڈر پر صحیح تشخیص نہیں کی گئی۔ قرنطینہ کی سہولیات میں کوتاہی کی وجہ سے کیسز سامنے آئے۔ تمام افراد کو علیحدہ علیحدہ قرنطینہ میں رکھا جانا چاہیے تھا۔ کورونا کو کیسے روکیں؟ وزیر اعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی فار کووڈ-19 کی آج بھی بیٹھک لگی۔ چاروں وزراء اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ بین الصوبائی نقل و حرکت محدود کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تجویز۔ وفاق نے مزید مشاورت کا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومتی سطح پر ہر ممکن اقدام اٹھایا جائے گا۔ سندھ میں میٹرک کے امتحانات 15 جون سے ہوں گے۔ انٹر کا پہلا پرچہ 6 جولائی کو ہوگا۔ پہلی سے 8ویں کے امتحانات 1 جون سے شروع ہوں گے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کی پریس کانفرنس۔ کہا کالجز میں داخلوں کا آغاز 15 جولائی سے ہوگا۔ 9ویں جماعت کے نتائج کے مطابق داخلہ ہوگا۔ والدین ایڈوانس نہ دیں، ماہانہ بنیاد پر اسکول فی ادا کریں۔ کورونا کے باعث کراچی میں لاک ڈاؤن کی افواہیں سوشل میڈیا پر تبصرے ہونے لگے۔ عوام خوف زدہ، احتیاطی تدابیر نظر انداز، لوگ امڈ آئے، بازاروں میں رش۔ عوام احتیاط کریں، کرنسی کے استعمال کے بعد فوری ہاتھ دھو لیں۔ کورونا کا خوف جعلساز فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں جعلی ڈاکٹر کا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے کا دعویٰ۔ شرطیہ علاج کے لیے پمفلٹ بھی آویزہ کر دیے۔ پولیس کا ایکشن، جعلی ڈاکٹر دھر لیا گیا۔ جعلی ویکسین برآمد۔ کراچی میں مہنگے داموں سینیٹائزر فروخت کرنے پر بھی ایک ملزم گرفتار۔ 162 ممالک کورونا وائرس کی لپیٹ میں۔ دنیا بھر میں 1,78,000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ ہلاکتیں 7,000 سے تجاوز کر گئیں۔ وائرس نے یورپ میں پنجے گاڑ لیے۔ اٹلی میں مزید 350 ہلاکتیں، تعداد 2158 ہو گئی۔ اسپین میں 335 ہلاکتیں۔ ایران میں مزید 129 اموات، تعداد 853 ہو گئی۔ 19 افریقی ممالک میں بھی کورونا کے وار۔ سوڈان، سینیگال، نائجیریا، گھانا اور گبون متاثر۔ جنوبی افریقہ میں ایمرجنسی نافذ۔ کینیا نے سرحدیں بند کر دی۔ امریکہ اور برطانیہ میں ہلاکتیں بڑھنے لگیں۔ چین میں صورتحال بہتر ہونے لگی۔ کورونا وائرس سے معیشت بیمار ہونے لگی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تاریخی مندی۔ 100 انڈیکس میں 2,375 پوائنٹس کمی، 33,684 پوائنٹس پر بند ہوا۔ ڈالر 1 روپے 87 پیسے سستا، 157 روپے 10 پیسے کا ہو گیا۔ حکومت IMF سے اہم رعایت حاصل کرنے میں کامیاب۔ کورونا پر اٹھنے والے اخراجات مالی خسارے میں شامل نہیں ہوں گے۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی تصدیق۔ کہا کوشش ہوگی اشیاء خورنوش کی قلت یا قیمتوں میں اضافہ اور بے روزگاری کا خطرہ پیدا نہ ہو۔ السلام علیکم، آج 12 میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں علی عابد۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کورونا وائرس نے ملک بھر میں اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ آج ملک میں 125 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ سب سے زیادہ کیسز سکھر میں سامنے آئے، جس کے بعد سندھ بھر میں متاثرین کی تعداد 150 تک جا پہنچی۔ خیبر پختونخوا میں کورونا وائرس کے 15 کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک بھر میں وائرس سے متاثرین کی اب مجموعی تعداد 183 ہو گئی ہے۔
खतरनाक वायरस कोरोना का रोग, मुल्क में बतदरीज बढ़ने लगा खौफ। 24 घंटों में 125 से जायद नए केसेस सामने आ गए। सिर्फ सक्खर में ही 106 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। तमाम जायरीन तफ्तान से आए थे। नए केसेस के बाद सिंध में मुतासरीन की तादाद 150 तक जा पहुंची। खैबर पख्तूनख्वा भी कोरोना के वार से ना बच सका। डेरा इस्माइल खान में 15 अफराद में कोरोना वायरस पाया गया। तमाम अफराद तफ्तान के करंटीना में 14 रोज मुकम्मल करने के बाद यहाँ पहुंचे थे। अब तक बलूचिस्तान में 10, इस्लामाबाद में 4, गिलगित बल्तिस्तान में 3 और लाहौर में 1 केस सामने आ चुका है। सिंध के 2 और इस्लामाबाद का 1 मरीज सेहतयाब होने के बाद अपने घरों को जा चुके हैं। कोरोना वायरस के नए मरीज तफ्तान में कायम करंटीना में 14 रोज गुजार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उनमें वायरस की तस्दीक हुई। सूरत हाल ने हुकूमती इक़दामात पर सवालात उठा दिए हैं। पाक ईरान सरहद पर नाकिस इंतजामात, करंटीनिया के नाम पर हुकूमत का मजाक। तफ्तान मुल्क में कोरोना वायरस की जड़ बन गया। ईरान से हजारों पाकिस्तानी जायरीन वापस आए। हुकूमत ने जायरीन को घरों को भेजने के बजाय तफ्तान में ठहराया। किसी को आइसोलेट किया, ना ही चेकअप का कोई इंतजाम किया। यहाँ न कोई दवाई मिल रही है। डॉक्टरों से जब हम बात करते हैं वो बोलते हैं कि आप खुद मंगवा ले कोयटा से। हम कहाँ से मंगवा ले, हमें बाहर जाने भी नहीं दे रही। ना कोई प्रॉपर चेकिंग हमारी होती है, ना कोई स्पेशलिस्ट जो है डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है। बस वहाँ पर खामखा में यहाँ पर ठहराया गया है। एक एक कमरे में दर्जनों लोगों को रखा गया। बच्चे साथ खेलते नजर आए। जायरीन हुकूमत पर बरसते रहे। यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है, वॉशरूम नहीं है, खाने पीने का निज़ाम सारा कुछ मिक्स किया हुआ है इन लोगों ने, और अनहाइजीनिक चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे जो है कोरोना के फैलने के बहुत खदशात हैं। हुकूमती गैर संजीदगी का इतना आलम था कि करंटीनिया में बाजार तक लग गया, लेकिन किसी के कान पर जू तक न रेंगी। हुकूमत के नाकिस इंतजामात के बायस यहाँ से सूबों में पहुँचने वाले 50% जायरीन में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उठाए गए इक़दामात हुकूमत मनसूबाबंदी के बायस इसके फैलाव का सबब बन चुके हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस से आगे कुछ करते नजर नहीं आते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तफ्तान में कोई करंटीना नहीं था, चारपाई से चारपाई मिली हुई थी, सब एक ही साथ रह रहे थे। सक्खर में कायम करंटीना में बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। एक फ्लैट में फ़कत एक शख्स को ही रखा जा रहा है। कोरोना वायरस के केसेस अभी और बढ़ेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफ्तान में करंटीना सेंटर के इंतजामात पर उंगलियां उठा दी। तफ्तान में हमें बताया गया कि सिंध से 853 जायरीन हैं। क्वारंटीन का मतलब ये है कि एक बंदा एक कमरे के अंदर हो। सभी तो देखा तो वो तो सब साथ बैठे हैं, सब साथ चारपाई से चारपाई लगी हुई है, मिलजुल रहे हैं। तो ये क्वारंटीन नहीं था, ये तो खुदा ना खास्ता एक को है तो उन सबको लगना था उससे। मुराद अली शाह का कहना था कि सूरत हाल से निमटने के लिए सिंध बिल्कुल तैयार है। मैं रोज़ाना एक मीटिंग कर रहा था। इस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के ये फैसला किया कि जिस दिन ये ज़ायरीन तफ्तान से सिंध आएंगे, हम इन सब को क्वारंटीन करेंगे 14 दिन के लिए। उन्होंने शहरियों को मशवरा दिया कि बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। आप नहीं चाहते बीमार होना तो आप और बाकी सबको कहें कि गैर ज़रूरी बाहर जाना छोड़ दें और घरों में बंद हो जाए। वज़ीर आला सिंध का ये भी कहना था कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर ताकि बीमारी से महफूज रहें। तफ्तान बॉर्डर पर सूरत हाल आइडियल नहीं है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने एतराफ़ कर लिया। कहा कि इसके अलावा कोई और हल भी नहीं था। अगर सिंध हुकूमत ने ईरान से आने वाले लोगों को बेहतर माहौल में करंटीना किया तो ये अच्छी बात है, इससे फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। हमारे 6000 से ज़्यादा ज़ायरीन ईरान में गए हुए थे। तमाम के तमाम जो थे ज़्यादा गैर महफूज थे ईरान में। बड़ी सोच समझ के बाद ये फैसला किया गया, उनको बैचेस में हम लेकर आए। तफ्तान एक बड़ी दूर अफ्तादा और बड़ी मुश्किल जगह है। वहाँ पे हमने बहुत मेहनत के साथ एक क्वारंटाइन बनाया। वहाँ पे लोग रहे। वहाँ से फिर लोगों ने जब 14 दिन मुकम्मल किए तो उनको आगे लेकर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात का इकरार करता हूँ, वो कोई आइडियल जगह नहीं थी उनको रखने की, लेकिन इसके अलावा कोई
चॉइसेस भी नहीं थी वहाँ पे। उसके बाद उनको सिस्टम के तहत वहाँ से निकाला। मैं नहीं समझता कि इसमें किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना, मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आला साहब ने भी ये बात इस अंदाज में की होगी। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़े अच्छे फैसले किए हैं। ये जो फैसला किया वहाँ पे उनको दोबारा क्वारंटाइन करने का बहुत अच्छा फैसला है, उनके टेस्ट किए बहुत अच्छा फैसला है, हमें उसमें पॉजिटिव मिल गए, अच्छी बात है हमें मिल गए। अगर ये ना मिलते तो ये इसी तरह घरों में चले जाते और बीमारी फैलाते। हमें तो इसकी तारीफ करनी चाहिए। वज़ारत तालीम सिंध ने ऐलान किया है कि मैट्रिक के इम्तिहानात 15 जून से लिए जाएंगे। इंटरमीडिएट का पहला पर्चा 6 जुलाई को होगा। मैट्रिक के नताइज से कबल ही दाखिले शुरू हो जाएंगे। कॉलेजेस में दाखिला 9वीं जमात के नताइज की बुनियाद पर होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने वालिदैन से माहाना स्कूल फी जमा कराने की हिदायत भी की है। 15 जून 2020 से 9th और 10th क्लास के एग्जाम्स शुरू होंगे। 15 अगस्त 2020 10वीं जमात का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। वज़ीर तालीम सिंध ने स्टीयरिंग कमेटी के फैसलों से आगाह करते हुए कहा, 6 जुलाई से इंटर के इम्तिहानात होंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात दोपहर की शिफ्ट में ही होंगे। 6 जुलाई 2020 11वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात जो नताइज हैं 12वीं जमात के वो 15 सितंबर 2020 को जारी कर दिए जाएंगे। वज़ीर तालीम ने वालिदैन को माहाना स्कूल फीस अदा करने की हिदायत भी की। वज़ीर तालीम ने बच्चों को छुट्टियों के दौरान